Now, do you remember the last sum we did in the previous session, wherein we revised the concept of fixed base in a chain based method, और एक नया पॉइंट था जो हमने पेंडिंग रखा था, और वो हमने डिसाइड किया था कि आज वो हम करेंगे. तो वो जो नया सम हमें करना है, नया जो पॉइंट है, वो अभी हम कर ले रहे हैं. आफ्टर दैट टुडे अगेन वी वुड रिवाइज द चेन बेस्ड मेथड के सम एंड फिक्स्ड बेस्ड मेथड के सम, सो दैट कंसेप्ट अपना एकदम मजबूत हो जाए. गेटिंग इट? Getting it? So I would request, please open your textbook, notebook wherein we did yesterday's sum. Same book में ही करना, हाँ, ऐसा नहीं रोज रोज नया book नया दिन. Let's start. We were on to this sum. I also have that in my notebook. Okay, the data about the wage of the group of the workers employed in the factory हमको जो दिए थे, उसमें हमने फिक्स्ड बेस मेथड से निपटा दिया. 2008 का डन. देन चेन बेस भी हमने खत्म कर दिया. yes or no? The third point we need to do it right now. The third point, which is very important, the third point which we need to do it, we have to go for the fixed base method, taking average of the year. We have to take the average of the years of 2011 से लेके 2013 का. So उसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो वर्किंग में जरा समझो. हमें बोले हैं 2011, 12 और 13, ये जो 3 ईयर है, उसका जो भी एवरेज आएगा, उसका जो भी क्या आएगा, एवरेज, उसको हमें अपना बेस बनाना है. उसे हमें अपना बेस बनाना है. So give the heading, working note number 1. Working note number 1, calculation of average of wages, calculation of average of wages from 2011 to 2013. So 2011 में अगर मैं देखूं तो 293 है अपना वेजेस. 2011 में अगर हम देखें तो हमारा वेजेस है 293. 2012 में अगर मैं देखूं तो इट इज 297. एंड 2013 में अगर मैं देखूं सो वो है 313. अब बेटा एवरेज है ना, तुमने बचपन से सीखा है, तीनों को प्लस कर दो. 297, 293 plus 313, we are getting 901. But are we getting 901? 903? I'm sorry, it's 903. It's 903. Total for this 3 years comes to 903. And now if I take the average, तो 903 divide by 3 कर देंगे हम. So you will get 301. You'll get 301. और ये जो हमारा आएगा 301, उसको हम अपना बेस लेके चलेंगे. वो फिक्स्ड बेस हो गया. 3 साल का जो एवरेज आ रहा था, 3 इयर्स का जो एवरेज आ रहा है, वो है मेरा फिक्स्ड बेस. तो 3 साल का एवरेज लिख दो. द एवरेज वी आर गेटिंग 301. એટલે now each and every prices will be divided by 301. So 275 divided by 301 into 100. So tell me what should be the answer.
275 divide by 301 into 100. So you'll get 91.3. देखो जरा 91.3 आ रहा है, जोरदार. Then the next price is 284. So 284 divide by 301. बड़े ये पता चला हमने 3 साल का एवरेज कैसे निकाला है. तो अगर हमें 3 इयर्स का बोले हैं तो 3 इयर्स का निकालेंगे, 2 इयर्स का एवरेज बोला है तो 2 इयर्स का एवरेज निकालेंगे. डू यू गेट दैट? सो 284 डिवाइड बाय 301 into 100. So that comes to 94.35. 94.35. Yes, Dev. Any doubt? Dev. સર એકવાર પાછું શું કહો છો? કાઢવાનું એવરેજ કઈ રીતે કાઢવાનું પાછું એકવાર કહી દેજો ને સર. 3 વર્ષના જે વેજીસ હતા એ ત્રણેને પ્લસ કર્યા ડિવાઇડ બાય 3. ઓકે સર, થેન્ક યુ. જે 2011 છે, 2012 છે, 2013 સમમાં બેટા જે આપણને વેજ આપ્યા હતા ત્રણેને પ્લસ કરીને ટોટલ કરી લીધું. ડિવાઇડ બાય 3, ડિવાઇડ બાય 3. अगर 2 વર્ષના કીધા તો 2 વર્ષનું ટોટલ કરીને ડિવાइड बाय 2. उस तरह से हम करते बेटा. ठीक है? ओके सर. Okay. Then next 289. The next is 289 divided by 301 into 100. That comes to 289 divided by 301 into 100. 96.01. 96.01. Then 293 divide by 301 into 100. That will give me 293 divide by 301. 97.34. 97.34. Then 297 divide by 301 into 100. 297 divide by 301 into 100. 98.67. 313 divided by 301 into 100. 313 divided by 301 into 100. So 103.98. 103.98. Then 328 divided by 301 into 100. So I'll get 108.97. बेटा मैं सीधा आंसर लिख दूं चले? मैं सीधा आंसर लिख दूंगा तो चलेगा ना कि मेहनत करवाओगे? 345 divided by 301 into 100. So 114.61. 114.61. Tell me the honestly, कितनों के आंसर आ गए थे मेरे करने से पहले? And 3 years का एवरेज समझ में आया कैसे लिया है बेटा 3 years का एवरेज? So that was a new point, but it's very easy. Whatever the average they have asked us to take, we'll get the average and then all the indexes will be divided with those number, with those average. Yes or no? Yes, honey. Any doubt? Honey? Honey? Any doubt? Yes, honey. सर હું લેટ આવી છે તો 301 કેમનું હોય મને ખબર ના પડી. बेटा बहुत इजी है. हमको ऐसा कहा था, हमें ऐसा कहा था कि 3 इयर्स का एवरेज हमें लेना है. 3 इयर्स का एवरेज 2011 से 2013 का. तो हमने वो 3 का टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर दिया तो हमको एवरेज मिल गया 301. ओके सर. ये वर्किंग है. स्क्रीनशॉट ऐसा हो तो ले ले. हाँ. तुम बाद में वो वर्किंग लिख सकते हो. टेक द स्क्रीनशॉट. हाँ सर લઈ લીધું. ઓકે બેટા ડન. ચલો એટલે આ રીતે 301 આવશે અને પછી બધા નંબરને આપણે 301 થી ડિવાઇડ કરીને we'll get the answer. Sure? अच्छा, tell me honestly, are you people now able to understand the fixed base and the chain base? If I ask you to do one sum wherein again fixed base chain base हो
लेकिन उसमें एक नया पॉइंट इंक्लूडेड हो तो हम कर पाएंगे, करेंगे तो साथ में, लेकिन कैलकुलेशन फिर थोड़ा स्पीड में रखना तुम लोग, कैलकुलेशन थोड़ा तुम स्पीड में रखना, ठीक है। गो टू द नेक्स्ट सम, कम ऑन, गो टू द नेक्स्ट सम, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। पहले ये एक इजी सम निपटा देते हैं, फिर उस पे चलते हैं, पहले इस पे चलो। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, the prices of the 5 fuel related items in the year 2014 and 2012 are given. Calculate, underline the word general index. We need to calculate general index. मतलब जनरल इंडेक्स का मतलब क्या, कि ये सारी जो हमें 5 आइटम दी हैं, they all are related with the fuel, they all are related with fuel. अब ये जो 5 आइटम दी हुई है अपने को, जो फ्यूल के रिलेटेड है, उसका मुझे ओवरऑल इंडेक्स बोले हैं फाइंड आउट करने के लिए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, अगर मैं तुमको कहूं कि तुम लोग फूड का इंडेक्स मेरे को बताओ, 2012 के कंपैरिजन में 2020 के फूड प्राइसेस का आप मुझे इंडेक्स बताओ, फूड प्राइसेस, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात है कि सर आप फूड की बात कर रहे हो, तो खाने में तो कितनी सारी आइटम आती हैं, वीट, राइस, बाजरा, बेटा वागरा नहीं बाजरा, પછી जुआर, બધું જ આવે ને फूड आइटम्स में, जो इंसान खा रहे हैं, हम लोगों की बात हो रही है, जो इंसान खा रहे हैं। तुम क्या खा रहे हो मुझे पता नहीं, पिज्जा बर्गर, बट देन वीट, राइस, बाजरा, इन सब के प्राइसेस का अगर मैं ओवरऑल इंडेक्स फाइंड करूं, ओवरऑल, तो उसे हम जनरल इंडेक्स बोलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, विल कॉल इट एज जनरल इंडेक्स। मतलब कैटेगरी एक છે ને એમાં 6-7 આઈટમ છે, અને એ 6-7 આઈટમની આપણે એક સાથે ઇન્ડેક્સ ફાઇન્ડ કરવાનું, તો એને જનરલ ઇન્ડેક્સ કહીએ આપણે। ખ્યાલ આવ્યો? સમ કરીએ, ફટાફટ સમ કરીએ, ચલો। શું કહે છે कि द ओवरऑल इंडेक्स हमको ढूंढना है और कितना प्राइस बढ़ा है वो हमें बताना है। तो हमें 5 आइटम दी हुई हैं। अब देखो यहां पर क्लियरली लिखा है 2012 को हमको हमारा बेस ईयर लेना है, क्लियरली बोला है, एंड 2014 जो है वो मेरा करंट ईयर है, करंट ईयर। इसलिए जब मैंने टेबल बनाया, देखो जरा, जब मैंने टेबल बनाया तो 2012 के प्राइस को देखो मैंने P0 लिख दिया क्योंकि उसे बेस लेने के लिए बोले थे, एंड 2014 को करंट ईयर, तो उसका हम P1 ले लेंगे, बराबर। बेटा टेबल बना लो, आई एम वेटिंग फॉर यू, टेबल बना लो, मैं तुम्हारी राह देख रहा हूं। आइटम भी लिखनी की तुमको, देन प्राइसेस ऑफ द आइटम 2012, उसको बेस ईयर लेने के लिए बोला है, तो उसे हम P0 ले लेंगे, उसे हमें P0 ले लेने का, क्योंकि वो हमारा बेस ईयर है। एंड 2014 को हम ले लेंगे हमारा करंट ईयर, जिसको हम P1 कहेंगे, जिसे हम P1 कहेंगे। अच्छा सर एक डाउट आ रहा है दिमाग में, बेटा डाउट आ रहा है मेरे दिमाग में, सर अगर बोले नहीं होते तो कि किसको बेस ईयर लेने का, तो मैं क्या करता? Who will tell me? If no information is available, so what base year I would have taken if no information is given? नित्या, नित्या, સર આપણે બેઝ યર પ્રીવિયસ યર ને જ લેવાનો છે ને, તો જે પહેલાનો યર હોય એને લેવાનો। यस। तो अगर जब सम तुम जैसा है, जब सम तुम जैसा है, देखो अभी तुम लोग जूम पे कैसे साइलेंट हो और मैं अकेला वायलेंट हूं, तो अगर सम भी साइलेंट है, कुछ बोलता नहीं है कि किसको बेस ईयर लेने का, तो हमेशा जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसी को बेस ईयर लेने का। तो 2012 અને 2014 માં પહેલો કોણ આવે? 2012, तो उसी को बेस ईयर लेने का, ने 2014 को करंट ईयर लेने का। चलो हमने जो अभी तक एक फॉर्मूला सीखा है बेटा, वो याद है?
બબડો મનમાં બબડો કયો છે કરો કરો એવું કરો P1 upon P0 into 100. સર અડધી રાત્રે તમે આ ફોર્મ્યુલા પૂછો આવડી ગયો છે મને આ વાળો તો ચોક્કસ આવડી ગયો છે P1 upon P0 into 100. Let's find it out. Come on. Let's put it in the question and let's find it out. P1 upon P0 into 100. So पहले वाले का क्या आएगा 3.5 divide by 3 into 100. Give me the answer. 3.5 divided by 3 into 100. 116.67. Then 370 divided by 345 into 100. 370 divided by 345 into 100. So 107.24. It's 107.24. 1.5 divided by 1 into 100. बेशर्मो कैलकुलेटर पर मत करना 150 आंसर आता है सर मैं कैलकुलेटर ही यूज करूंगा सर मैं क्यों करूं 150 yes or no next 20 divided by 15 into 100. So 20 divided by 15 अगर हम करें तो 133.33 आ रहा है. And then last 15 divided by 12 into 100. That's equal to 15 divided by 12. That's 125. બરાબર છે. હવે તમે જોશો તો this index 116 it's for electricity. એક individual item ની આ index number છે. ગેસ નો index number individual છે, match box individual છે, kerosene individual છે, wood individual answer છે બધા. પણ આપણે એ બધાનું ટોટલ કરી દઈએ. આપણે એ બધાનું ટોટલ કરી દઈએ. Give me the total 116.67 plus 107.24 150 then 133.33 and then 125. The overall total is 632.24. तो ये 5 आइटम का ओवरऑल टोटल आ रहा है. ओवरऑल टोटल तो उसके नीचे लिखेंगे बेटा therefore general index for fuel क्या ना से 632.24 है टोटल और हमने उसमें 5 आइटम ली हैं. सो डिवाइड बाय 5 कर देंगे हम. तो 632.24 divide by 5. So I'll get 126.45. 448 है तो उसको राउंड ऑफ करके हम 45 ले लेंगे. 126.45 जनरल इंडेक्स फॉर फ्यूल ओवरऑल. 5 આઇટમ આપણે લઈ લીધી એટલે 5 નું મેં એવરેજ કાઢ્યું તો એવું કહી શકીએ કે ફ્યુલ ના ભાવ 126 रुपया 0.45 થઈ ગયા છે. फ्यूल નો इंडेक्स फ्यूल का इंडेक्स 126.45 ऐसा हो चुका है. राइट. अब जरा ध्यान क्वेश्चन में ये भी बोला है स्टेट ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फ्यूल आइटम. ओवरऑल इंक्रीज. स्टेट ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फ्यूल आइटम्स. तो कल हमने ये कंसेप्ट सीखा था कि जब ओवरऑल इंक्रीज की बात जब कर रहे हैं तो देखो कल याद करो मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था. ओवरऑल इंक्रीज अगर देखना है तो देखो ओवरऑल इंक्रीज इज 26.45% और वो कैसे आया कि भाई हमारा अभी फाइनल आंसर करंट ईयर का कितना आया 126.45. अगर हम बेस 100 लेके चलते हैं
કે ભાઈ ઇન્ડેક્સ 100 હશે, કેમ કે જે પણ આપણે ફિક્સ કરીએ બેઝ of any year or anything, if I keep fixed base as 100, तो 100 से भाव अभी 126 हो गए हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर इज ऑलवेज 100। ये नोट भी मैं तुम्हें आगे लिखवाने वाला हूं, लेकिन अभी से वो समझना है अपने को कि इंडेक्स ऑफ द बेस इज ऑलवेज 100। मतलब 2012 ना 2012 નો ઇન્ડેક્સ 100 જ હશે, જે મારો બેઝ યર છે। ઓકે, અને હવે 2014 માં ફ્યુલ ના ભાવ કેટલા વધી ગયા? 126.45। तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है देखो 2012 के कंपैरिजन में 26%। ये लिख लो 26% इट हैज इंक्रीज्ड। और वो कैसे आया? ये 126.45 और 2012 का जो बेस ईयर है, जो मेरा बेस ईयर है वो हमेशा 100 रहेगा। एंड 2014 का भी हमने आंसर निकाला, उसका जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फ्यूल। दैट्स द ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फ्यूल। राइट इट डाउन, कम ऑन, even write the formula, even write down the formula। But is it done? General index, general index, is it done? Okay, but let's do one more sum on this general index। Let's do one more sum on this general index, जिसमें टेबल अब तुमको थोड़ा बराबर बनाना पड़ेगा, टेबल एंड ऑल तुम्हें बराबर बनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पर चले जाओ। 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, पहले पेज पर मतलब ये सम हमें 2 पेज में करना है। वी हैव टू डू दिस सम इन 2 पेजेस, बिकॉज हमें क्या बोले हैं देखो, द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन अबाउट द एवरेज प्राइसेस ऑफ द व्हीट, राइस एंड शुगर। देखो बेटा, खाने पीने की आइटम की बातें चल रही है, खाने पीने की आइटम। अब देखो जनरल इंडेक्स मुझे ये तीनों आइटम का ढूंढना है, मुझे ये जनरल इंडेक्स तीनों आइटम का ढूंढना है। पहले फिक्स बेस मेथड से लेके, जिसमें 2011 को मेरे को फिक्स बेस लेना है, और फिर चेन बेस मेथड से भी करना है। मतलब हमें अभी मैं जो तुमको फॉर्मेट शेयर कर रहा हूं, अभी जो मैं तुमको फॉर्मेट शेयर कर रहा हूं, ये हम एक पेज पे लिखेंगे, ये हम एक पेज में लिखेंगे जनरल इंडेक्स बाय फिक्स्ड बेस मेथड। અને પછી આવો સેમ ફોર્મેટ આપણે બીજી વારે બનાવવું પડશે ચેન બેઝ માટે। તો આટલું પહેલા બનાવી લો, પછી આપણે સમ સાથે સ્ટાર્ટ કરીએ। આટલું તમે કરી લો, પછી સમ આપણે સાથે કરીએ। जनरल इंडेक्स बाय फिक्स्ड बेस पहला हम ढूंढेंगे तीनों आइटम की, व्हीट, राइस, शुगर। अब ये सब में वैरायटी क्या है कि हमको 2-3 ईयर की इंफॉर्मेशन साथ में दी हुई है, इसीलिए टेबल अपना ऐसा बनेगा। અને પછી સેમ ટેબલ બનાવવાનું છે ચેન બેઝ માટે। એની માટે ટાઈમ આપીશ, પહેલા जनरल इंडेक्स बाय फिक्स्ड बेस પહેલા કરી લો। ચલો, जनरल इंडेक्स बाय फिक्स्ड बेस કરી લો, ટેબલ પહેલા બનાવી લો આટલું તમારા નોટબુક માં। એન્ડ બેટા રિક્વેસ્ટ, પેન પેન્સિલ સ્કેલ નો ઉપયોગ સદુપયોગ કરજો, દુરુપયોગ નહીં, સદુપયોગ।
बेटा टेबल डन के स्क्रीन शेयर पब्लिक मैसेज करेगी सर एसएस एसएस बेटा टेबल बना लिए बोलो ना यार एक थम्स अप तो दे दो यार कितने तुम लोग सुस्त हो यार तुम लोग एक थम्स अप नहीं देते हो कि सर वी आर रेडी મારે પેન પેન્સિલ ની જરૂર શું છે સર લાઈન મારવા માટે પેન પેન્સિલ ની જરૂર ક્યાંથી પડી સર આપણને એના વગર જ કામ થઈ જાય છે આપણું એના વગર કામ થઈ જાય છે હાલો નાउ लेट्स स्टार्ट बेटा लेट्स स्टार्ट हमको ये देखो 5 साल के 5 इयर्स के हमको ये तीनों आइटम के हमको प्राइजेस दिए हुए हैं अब जब ये जनरल इंडेक्स फिक्स बेस मेथड से हमें ढूंढना है जनरल इंडेक्स फिक्स बेस मेथड से ढूंढना है तो पहले 2011 का हम करते हैं चलो तो पहले मुझे ये बताओ ये इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा सर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा इट्स ऑलवेज द फॉर्मूला ऑफ द इंडेक्स इज P1 upon P0 into 100 that's the formula P1 upon P0 into 100 तो 2011 में वीट के भाव 18 हैं और उसी को मेरे को बेस ईयर लेके चलना है तो इंटू मतलब 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 18 इंटू करूंगा तो मेरा आंसर 100 आएगा वीट का समझ रहे हो वीट वालों अब 2012 का कैसे करेंगे जरा समझो 2012 का 2012 में वीट के भाव हो गए 18.5 रुपए लेकिन हमें हमारा बेस तो 18 लेके ही चलना है 2011 का बोले हैं सो इनटू 100 करके करो कितना आ रहा है चलो जरा 2011 का कितना आ रहा है जरा बताएंगे 2012 का सॉरी 2012 का 18.5 डिवाइड बाय 18 इंटू 100 तो 102.77 102.77 that's my answer બરાબર છે હવે 2013 માં શું ભાવ થઈ ગયા 18.9 डिवाइड बाय बेस तो मुझे 2011 का ही लेना है into 100 so that will be equal to how much 18.9 divide by 18 into 100 that comes to 105 then 2014 में भाव हो गए 19 रुपए 19 रुपए को मैं डिवाइड करूंगा 18 के साथ into 100 करेंगे हम तो 19 डिवाइड बाय 18 that comes to 105.55 सर क्या मजे ले लेके हम सम कर रहे हैं सर एक कैलकुलेशन हमको करने की जरूरत नहीं पड़ रही है सब आप कितना मस्त कॉपी करवा रहे हो 2015 में क्या भाव हो गए 19.5 डिवाइड बाय हम 18 कर देंगे into 100 that will give me 19.5 divided by 18 108.33 अच्छा फिक्स्ड बेस से जो कर रहे हैं पता चल रहा है 2011 को जो अपने को हमारा बेस लेके चलना है वो समझ में आ रहा है सो हमने किसका खत्म कर दिया कैलकुलेशन वी फिनिश्ड द कैलकुलेशन ऑफ वीट विल यू ट्राई राइज ऑन योर ओन एंड गिव मी द आंसर राइज ना आंसर મને આપો હું નથી સ્ટાર્ટ કરતો તમે કરો રાઇઝ ના આન્સર તમે મને આપો ओके ओके बेटा एसएस करना पड़ेगा बेटा मेरे को एसएस करना पड़ेगा एसएस चलो राइस के प्राइस हैं 30 36 38 38 एंड 39 सो फर्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा 30 इज द प्राइस ऑफ द करंट ईयर 30 इटसेल्फ इज द प्राइस ऑफ द बेस ईयर
and that will give me 100 again. That will give me 100 again. Then 2012 में 36 छे, divide by 30 into 100. 36 divided by 30 into 100, 120. Then 2013 के प्राइस है 38 divide by 30 into 100. 38 divided by 30 into 100, 126.67. कहना से 14 का भी मेरा तो आंसर आ गया. Then 39 divided by 30 into 100. 39 divided by 30 into 100, that comes to 130. So this is our answer for rice. But now I'm definitely waiting for the sugar. I'm not going to do that. SS कर दईस, पण calculation नहीं करूँ, CC नहीं करूँ. SS कर दईस, CC नहीं करूँ, calculation. जाते करो, sugar you. Sugar. बेटा आंसर तुम्हारी स्क्रीन पे मैंने रख दिया है, तुम लोगों का आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है. अब ये हम जनरल इंडेक्स फाइंड करे हैं, ये जनरल इंडेक्स फाइंड किया है फिक्स बेस से. मतलब अभी हम सम को कंक्लूड कर रहे हैं फिक्स बेस पर. या सेम सम, वी नीड टू डू द सेम सम बाय चेन बेस मेथड आल्सो. वी नीड टू डू द सेम सम बाय चेन बेस मेथड. आर यू गेटिंग इट? સો આપણે જોઈ લઈએ. ચલો ચેન બેઝ મેથડ થી કેવી રીતે થશે. પહેલા ફિક્સ બેઝ નું ખતમ કરીએ. આનું ટોટલ કરો. 2011 નું ટોટલ જોવો. ये तीनों आइटम का टोटल करेंगे. 2011 में 100 100 100, ये तीन का टोटल अगर हम करेंगे तो दैट कम्स टू 300 बराबर है. 2012 में इन तीनों का टोटल करो. चलो 102, 120 and 103.33. 102.77, 120 plus 103.33, that is 326.1. 326.1. Then 2013 में 105, 126 उसका टोटल 105 plus 126.67 plus 106.67, so 338.34. Then 105.55 plus 126.67, 113.33, 345.55.
108.130 plus 120. So 358.33. And how I'll get the general index? Check it up. नीचे मैंने ऑलरेडी आंसर फॉर्मूला डाल के ले दिए. 300 को डिवाइड बाय फिर 3 करो, द टोटल विल बी डिवाइडेड बाय 3. तो 326 डिवाइड बाय 3 करो, 338.34 डिवाइड बाय 3 कर दो, 345.55 डिवाइड बाय 3 कर दो, 358.33 डिवाइड बाय 3 कर दो. तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. जनरल इंडेक्स, जनरल इंडेक्स बराबर हाँ भव्या, व्हाट यू वांट मी टू रिपीट? भव्या अनम्यूट. निजामपुरा भव्या. तो जनरल इंडेक्स कैसे फाइंड करना है? बेटा कैसे फाइंड करना है? ओहो, कितनी आइटम ली है? व्हीट, राइस, शुगर 3. सो दिस 300 डिवाइड बाय 3, 326.1 डिवाइड बाय 3. 3 आइटम ली है ना भव्या? बेटा अनम्यूट क्यों हो जा रहे हो? समझ के तो बेटा करो, फिर अनम्यूट करो अपने आप को. यस सर, पता चला. हाँ, अगर हमने देखो पिछले वाले में फ्यूल में 5 आइटम ली थी तो हमने 5 से डिवाइड किया. इधर 3 आइटम है तो डिवाइड बाय 3 करेंगे. बेटा कुछ तो बोलो जनता. बेटा सेम सम बाय चेन बेस से करना है. सो मेक द फॉर्मेट अगेन. सेम सम वी वुड डू इट बाय चेन बेस. तो मैंने तो मेरा टेबल तैयार रखा है बना के, तुम भी बना दो. चलो चेन बेस. बेटा आई होप यू रिमेम्बर व्हाट वी यूज्ड टू डू इन द चेन. करंट ईयर को प्रीवियस के साथ ही डिवाइड कर देने का. जे पण करंट चेन पाछला वाला साथ डिवाइड करो. चेन बेस, चेन बेस. सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. फटाफट पहला सम नो टेबल बनाई दो અને પછી આપણે સમ સાથે ચાલુ કરીએ. સમ આપણે સાથે ચાલુ કરીએ. I am waiting. You draw the table. Come on. Come on. बेटा स्टार्ट हुआ रे. लेट्स डू इट फॉर व्हीट. सो पहला 18 डिवाइड बाय 18 क्योंकि उसके प्रीवियस कुछ नहीं है. सो पहले का 100 आएगा फॉर व्हीट,
देन 18.5 के इमीडिएटली बाद में कौन सा है, प्रीवियस क्या है 18. So again 18.5 divided by 18, that give me 102.77. Then next 18.90 divided by 18.50 into 100. 18.9 divided by 18.5, so 102.16. Then 19 के immediately बाद में कौन सा है 18.9. बेटा I hope everybody remembers the chain base. 19 divided by 18.9. 19 divided by 18.9. 100.52. 100.52. અને 2015 માં it's 19.5 divide by 19 करेंगे into 100. So 19.5 divided by 19, 102.63. 102.63. But I am going on to then now rise. 30 डिवाइड बाय प्रीवियस कुछ नहीं है तो 30 ही लेके चलने का into 100, that will give me 100 again. Then 36 के previous 30 था into 100, that give me 120. Then 38 के previous में 36 था into 100. 38 divided by 36 into 100, 105.55. Then 38 के previous में 38 ही था, so that's 100. 39 के previous में 38 था, तो chain base में 39 divided by 38, 102.63. 102.63. Then sugar I'm starting off 330 के पहले कुछ भी नहीं 30 था 100. 31 divided by 30 into 100. 31 divided by 30, 103.33. Then 32 divided by 31 into 100. 32 divided by 31, 103.22. Then 34 divided by 32. 34 divided by 32 into 100. 106.25. Then 36 divided by 34 into 100. 36 divided by 34 into 100, 105.88. But how many of you are ready with all the three answers? Wheat, rice, sugar done. Chain base से सारे index find out कर लिए. Chain base से हमने सारे index find out कर लिए. Time to do the totaling part. Come on. Time to do the totaling part. पहले का तीनों का total करेंगे तो 300. दूसरे का 102.77 plus 120, then 103.33. 326.1. Then 2013 का 102.16, 105.55, 103.22, 310.93, then 100.52, 100, 106.25, 306.77,
102.63 plus 102.63 and 105.88, 311.14 बराबर। अब ये तीनों का टोटल आया। अब तुम देखो बेटा, जीवन का सबसे बड़ा डाउट पूछोगे, सर जनरल इंडेक्स कैसे मिलेगा? बेटा ये जो टोटल किए हैं डिवाइड बाय 3 करो बेटा, ये जो टोटल करे हैं डिवाइड बाय 3 कर दो। तो देखो मैंने आंसर तो ढूंढ लिए हैं, बताए नहीं है। तुम देखो तुम्हारे ऐसा आ रहा है क्या? गप्पा। यस 100, 108, 103, 102, 103। बेटा इज इट डन? But are you able to understand this general index? But now you are ready for few sums to be done as your homework. Plus, I have mentioned the video lecture which you need to watch tomorrow. उसके भी बारे में समझाता हूं, पहले अपना होमवर्क मार्क कर लो। चलो पहले अपना होमवर्क मार्क करो। Just a second, the things are getting opened. हाँ जी, तो आपको होमवर्क में करना है इलस्ट्रेशन 1 तो मैंने करवा दिया। इलस्ट्रेशन 3 in your homework. Illustration 3 પછી illustration 5, illustration 6, illustration 7। बस बस कितने सम दिए करने? 4। तो that is all based on the sums which we did today and yesterday. उसके बेस पर ये आपका होमवर्क है जो आपको खत्म कर देना है, ठीक है?